Yes, yes, good evening. So this is a very fresh evening, and we are going to again discuss the next part of thermodynamics. Am I right? So hope you have revised the part what we are discussing thermodynamics, being it's a very conceptual and very uh, important topic. So let's move with this chapter thermodynamics. हम जानते हैं अच्छी तरह कि thermodynamics is the chapter which is related with the energy, and till then we have discussed most of the concept related with thermodynamics. So first we have seen the definition of thermodynamics, limitations of thermodynamics. Secondly, we have seen fundamental definitions which are covered here in thermodynamics. That is a system surrounding boundary, open system, closed system, isolated system. We have seen different types of processes to again. And then we have seen two important derivations here in chapter number 1 is work obtained in isothermal irreversible expansion of the gas. W is equal to minus P delta V. The second derivation what we have seen here in the chapter is W max is equal to minus 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1 or either P1 upon P2. So these are the two derivations what we have seen related with the work in irreversible and reversible process. Furthermore, we have gone for next, that is called the first law of thermodynamics. We have seen it's a statement to again different interpretations. As well, we have seen the mathematical derivation of first law of thermodynamics. That is Q is equal to delta U plus P delta V. This is the format what we are seeing. Yeah, हमने उसके अंदर discuss किया है. Clear? Furthermore, हमने देखा first law has some certain limitations. That's why we proceed for the next law, and that is called the second law of thermodynamics. वो हमने डिस्कस कर दिया. उसके बाद हमने देखा important concept, that is core concept of this. बताना है. Yeah. Which is this? This concept is nothing but you can say here enthalpy. So enthalpy is a core concept of thermodynamics, and we have seen that two last lecture में हमने enthalpy के बारे में काफी सारा discussion किया. We have seen that enthalpy is a total energy content of the system, including its internal energy and pressure volume type of energy. And that is what we have seen, and we have derived the mathematical derivation for that. Delta H is equal to delta U plus P delta V, or second modified form when we have to apply it to the chemical reaction. We have introduced number of moles in that. So the equation becomes now delta H is equal to delta U plus delta nRT. So that is also called as a heat of reaction when it is applied to the chemical reaction, and enthalpy when it is applied to the system. So enthalpy is a heat of reaction is the enthalpy. And based on that, we have seen there are exothermic reactions, there are endothermic reactions, and the sign conventions are according to. So if delta H is negative, heat is released by the system to the surrounding. And if delta H is positive, heat is absorbed by the system from the surrounding. So this is the sign, these are the sign conventions what we have seen for the enthalpy. Furthermore, we have emphasized this part that there is no change possible without change in energy or change in enthalpy. And that's why here we have to discuss number of types of changes. That may be physical change, that may be atomic or molecular level change. Whatever change, that change happens always with the change in enthalpy. So we are discussing different types of enthalpies. So पहला जो हमने कल discuss किया था, that is change in enthalpy accompanied by different types of physical changes. So we have seen that is enthalpy of fusion, then enthalpy of freezing, enthalpy of vaporization, enthalpy of condensation, and enthalpy of sublimation. With the suitable examples of water, ice to water, water to vapors, vapors to vapors, water that is in liquid state, and again to the ice that is the solid phase. ये सारा conversion हमने देखा, and that is what we have discussed yesterday. हमने देखा that is enthalpy in physical changes. Today we are going to discuss enthalpy in atomic and molecular changes. So out of that, first is enthalpy of ionization. So let's move to the next. That is enthalpy of ionization. So enthalpy of ionization. Okay. Enthalpy of ionization. जैसे मैंने बताया कि change in enthalpy is delta H, or here should be enthalpy of ionization. This should be enthalpy of ionization. Delta IO and H. So ION represents enthalpy of ionization. Change in enthalpy is always denoted by delta H. Being there are different types of change in enthalpy, that is indicated by writing the suitable word in between delta and H. So कल हमने delta fusion FES, vaporization VAP, उसी तरीके से आज हम लोग लिख रहे हैं enthalpy of ionization ION. So this is enthalpy of ionization for the substances what we are seeing here. ये हमने यहाँ पे discuss कर दिया. Now, while moving ahead, we have to discuss the definition of enthalpy of ionization.
एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का डेफिनेशन बताने से पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, और पहले जनरलाइज और फिर पर्टिकुलर एग्जांपल। अब देखिए, देयर इज एम नाम एलिमेंट, एम नाम का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है जो एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस एलिमेंट इसके दो केसेस हो सकते हैं, इसके दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट व्हिच मे लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो व्हेनेवर दिस न्यूट्रल एलिमेंट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में, हम अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में उसके एटम में टोटल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दोनों बैलेंस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, दिस इज द न्यूट्रल। नाउ whenever this element loses an electron, so negative charge निकल जाता है, तो positive charge बढ़ेगा उसके अंदर, and that's why this element must develop a positive charge. So this element when loses electron, it forms M plus, and one electron is lost. One electron is lost. See now here, M is the element. When any M is the element loses an electron, it develops a charge, positive charge. If it loses one electron, plus one charge is developed. If it loses two electrons, plus two charges developed. If it loses n number of electrons, plus n charges developed. So how many electrons are lost? Accordingly, charges develop. तो यहाँ पे हमने ऐसा माना कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो M plus. This is cation. So neutral atom or neutral element is converted into cation. So this is the cation because positive charge is cation. Suppose this is the element which accept an electron, वो extra electron accept करता है. So what will happen here? एक electron extra हो जाएगा. So it will get converted to a anion. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, सपोज इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइनस लॉस्ट, दिस इज प्लस इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो एम नाम के इलेक्ट्रॉन के अंदर, एम नाम के एलिमेंट के अंदर सॉरी, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है, और व्हेनेवर उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होता है, दैट इज यू कैन से एनायन। सो दिस इज cation, this is cation, and this is you can say anion. So whenever any neutral element loses electrons or gains an electron, it converts into the ion. It may be a cation due to electron loss, or it may be anion due to electron gain. हमें ये जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो आयन में कन्वर्ट होता है, चाहे वो कैटायन बने चाहे वो एनायन बने। But this process is called as ionization process. This process is called as ionization process. That may be due to loss of electron, that may be due to gain of electron. This process is called as ionization. अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में दीस आर द सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिव चार्ज, एंड सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन द outermost orbit. This electron, though it is negative charge, nucleus is positive charge, there lies an attraction between this electron and nucleus. All electrons are bound to the nucleus because of electrostatic force of attraction. हम अच्छी तरह जानते हैं, structure of atom हमने 11 में देखा। So now when we have to remove this electron, हमें जब ये इलेक्ट्रॉन हटाना है, so there is an attractive force between nucleus and this electron. Nucleus और electron के बीच में there is an attractive force. अभी अगर हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो we have to overcome this attractive force. ये अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर हमें ओवरकम करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी। याद रखिएगा, वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी, वी नीड टू सप्लाई द हीट। सो व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड, देन दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज ब्रोकन एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है तो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, हीट हैज टू बी सप्लाइड। और दूसरी बात ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, तो अट्रैक्टिव फोर्स अराइज होता है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन जब बाउंड होता है किसी न्यूक्लियर के साथ, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो हीट हैज टू बी सप्लाइड, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करना है तो हीट विल बी रिलीज्ड। दिस टू प्रोसेस आर associated. So in that sense you can say this is heat has to be supplied or heat has to be removed. So here हीट के साथ ही ये प्रोसेस जुड़ा हुआ है, और जहां पे किसी भी चेंजेस के अंदर अगर हीट के साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट द चेंज इन एंथैल्पी। सो दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी, एंड दिस एंथैल्पी इज रिलेटेड विद द आयनाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज़ व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज एडेड, either it is one or more electrons, or whenever electron is removed, either again it is one or two electrons or more electrons,
that process always accompanied with a change in heat. And so whenever there is a change in heat at that time, we can say this is the change in enthalpy accompanying that particular process, that is ionization. So this is called the enthalpy of ionization. So we can define the definition for enthalpy of ionization, that is the change in enthalpy accompanying. देखिए कल भी हमने जो डेफिनेशन डिफाइन किए थे वो और आज का डेफिनेशन दोनों सिमिलर फॉर्मेट में, ज्यादा वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे, थोड़ा सा चेंज होता है। अगर वो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी की जितने सारे डेफिनेशन हम लोग लाइन में डिस्कस करने वाले हैं, 10 to 12 ऑलमोस्ट डेफिनेशंस, वो सारे डेफिनेशन एक जैसे हैं, बस उसके अंदर एक दो वर्ड्स के चेंजेस होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, वो आपको समझना है। तो तुम में से जिस किसी ने बुक से ये डेफिनेशन, कल मैंने बताया था, बुक से किसी ने अगर डेफिनेशन पढ़ा हुआ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड और लर्न किया हुआ है तो उन्हें बहुत इजी लगेगा। नहीं तो मैं आपको आज भी अपील करता हूँ कि कल वापस आप आपके पास जो ई बुक्स है या फिर बुक्स लाए होंगे तो उसमें से वो डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। एक डेफिनेशन दो डेफिनेशन हम लोग समझ लेते तो बाकी 10 डेफिनेशंस एकदम इजी होते हैं, बिकॉज एक का दूसरा वर्ड बदलता है। तो वंस अगेन हम लोग आते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? द चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनी द कंप्लीट रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए हम बोलते समय कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बट मैंने बताया कि केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में रीड किया जाता है। उसे रीड करने के लिए हम लोग मोल शब्द का यूज करते हैं, मोल वर्ड का यूज करते हैं। सो यहाँ पे भी वो आता है कि चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनी अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्योंकि किसी भी एटम में, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन हटाना है, ये प्रोसेस बात करें, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड, ऊपर की पहली प्रोसेस। सो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर हटाना है तो हीट हैज टू बी सप्लाइड, हीट हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी। और कितना हटाना है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस फॉर्मेट में। गैसियस फॉर्मेट में क्यों कि m नाम का जो एलिमेंट है वो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में प्रेजेंट है, सॉलिड लिक्विड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो उसका इलेक्ट्रॉन हटाने के टाइम उसके आजू बाजू के जितने सारे एटम है वो वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं। That may interfere in the process of removing electron. So that atom has to be in a single form. That atom has to be a single. So it won't get attached or don't get interfered with some other process and all. So it's easy to calculate its own change in enthalpy of ionization. एक ही एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन हटाना है तो दूसरा किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना? So this happens over here. So in that sense you can say change in enthalpy accompanying the complete removal of 1 mole of electrons from one mole of gaseous atoms. 1 mole of gaseous atoms is known as enthalpy of ionization. This is called as enthalpy of ionization. So all of you clear with this? So what is enthalpy of ionization? थोड़ा सा केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग के लिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को वापस दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है, उसे मोर करेक्टली एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहा जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है, बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन इज एडेड। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जा सकता है और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में मोर करेक्ट अगर हमें चलना है तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना है तो उसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। दैट इज द सेम, नो डाउट, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सो once again, what is enthalpy of ionization? Change in enthalpy accompanying a complete removal of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. 1 mole of gaseous atom without change in temperature is called as change in enthalpy of ionization. अभी उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको कि मतलब दो लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। सपोज सोडियम नाम का एलिमेंट है, सोडियम नाम का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फॉर्म प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। सोडियम, तो ये सोडियम का जो डेल्टा एच है, डेल्टा आयोनाइजेशन एच इज 494 किलोजूल इतना है, 494 किलोजूल। ये जो थोड़ा स्टैटिस्टिकल डेटा है, आपके स्टेट बोर्ड का जो नया बुक आ चुका है उसमें से रेफर कीजिए, स्टैटिस्टिकल डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो 494 किलोजूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द enthalpy of ionization is here for 1 mole of sodium atom. So 1 mole of sodium atom से अगर 1 mole of electrons हटा देते हैं तो उसका enthalpy of ionization 494 किलोजूल है, ठीक है। अभी दूसरा केस लेते हैं, दूसरा है कैल्शियम की केस लेते हैं हम लोग। कैल्शियम, तो कैल्शियम से अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो कैल्शियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। इसका चेंज इन एंथैल्पी कुछ 225 किलोजूल पर मोल लाइक दिस वन। लेकिन कैल्शियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन हटाता है,
कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन हट सकते हैं बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम का वैलेंसी +2 है और सोडियम का वैलेंसी +1 है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन हटाना है तो 220 किलो जूल समथिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना है तो दिस कैल्शियम आयन आई विल टेक इट एज इट इज कैल्शियम प्लस आयन, ओके। और इस कैल्शियम प्लस का और एक इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा मैं, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑलरेडी गया था, अभी दूसरा एक चला गया, तो यहाँ पे 2 प्लस आता है या 2 बार प्लस लिखना है, तो कैल्शियम 2 प्लस दिस इज। तो पहले स्टेप में कैल्शियम का हमने एक ही इलेक्ट्रॉन हटा दिया और दूसरे स्टेप में हमने उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा दिया। और अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन 1125 किलो जूल ऐसा है, 1125 किलो जूल। मोर करेक्ट यहाँ पे 504 किलो जूल ऐसा और यहाँ पे 1125 किलो जूल लाइक दिस। तो आप याद रखिएगा, सिंपल है। यहाँ पे इसके अंदर वापस एक सब डेफिनेशन तैयार होता है। ये पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी 500 किलो जूल के आसपास है और सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाना है तो 1125 मतलब 1125 आता है। तो आप समझ सकते हो कि कैल्शियम एटम पहला इलेक्ट्रॉन हटाता है तो कम एनर्जी में हम हटा सकते हैं, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाए तो एनर्जी हैज टू बी इंक्रीज्ड, एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है। इसका मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन हटने के बाद कैल्शियम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अटैच करके रखता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। तो इसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशनल एंथैल्पी और दिस इज सेकंड आयोनाइजेशनल एंथैल्पी। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं इफ amount of heat required to remove the first electron is called as a first ionization enthalpy और दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे n नंबर तक जा सकते हैं हम लोग, n नंबर तक जा सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं हम लोग और उसके हिसाब से फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लाइक दैट nth आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक हम लोग मूव कर सकते हैं। सो ये भी एक सब डेफिनेशन उसके अंदर क्रिएट होता है। सो हियर वी वर डिस्कसिंग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। द डेफिनेशन इज दैट the change in enthalpy accompanying complete removal of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom is called as enthalpy of ionization। और इसके अंदर भी दो आते हैं। In order to remove first electron is called as first ionization enthalpy और in order to remove the second electron is second ionization enthalpy। तो second ionization enthalpy बढ़ता क्यों है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक बताया मैंने कि पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है। दूसरी बात है कि हम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से हटा रहे हैं, क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था फुल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, पार्शियली फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कौन से यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन वो हटा रहे हैं, हम एस ऑर्बिटल से हटा रहे हैं, हम पी ऑर्बिटल से हटा रहे हैं, पार्शियली फिल से हटा रहे हैं, हम लोग फुल फिल से हटा रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर फुल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल से हटा रहे हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, हाफ फिल से उससे कम लगेगा, पार्शियली फिल होगा तो उससे भी कम लगेगा। ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं बिकॉज स्टेबिलिटी उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सो ऑनवर्ड्स, सो ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये वेरी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हिच इलेक्ट्रॉन वी हैव टू रिमूव एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ ऑर्बिटल, either s, e, d or f, either it is full fill, half fill or partial fill. There are many factors which decides the change in enthalpy for this one, but hope so you got this concept well, enthalpy of ionization. Now same is the enthalpy of ionization, but we have to add the electron and that is more correctly called as electron gain enthalpy. So let's have the second example for that, that is you can say electron gain enthalpy। मतलब वही है वो, बट उसे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच ऐसा बोला जाता है। डेल्टा ई जी एच मतलब समझ में भी आता है, सेपरेट भी होता है, सिंपल भी होता है। easy for electron gain enthalpy, तो change in enthalpy that is electron gain enthalpy, so that is what we can say here। so जैसे कि हम लोग जानते हैं कि Cl plus 1 electron forms Cl minus, so here electron gain enthalpy is equal to 343 kilojoule ऐसा है, 342 kilojoule। so this is when this energy is released, so it has to be minus। yeah, तो अब देखिए कि this is the chlorine atom which accept an electron, chlorine atom accept an electron to form Cl minus। तो नॉर्मल एटम का एनायन में कन्वर्जन हुआ, जो हम सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जनरलाइज्ड एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दिस इज Cl, क्लोरीन gains 1 electron to form Cl minus, so electron gain enthalpy is 343 kilojoule। so this is the electron gain enthalpy। so यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड दैट्स व्हाई एनर्जी इज रिलीज। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, एंड इलेक्ट्रॉन जब हटाया जाता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दोनों अपोजिट प्रोसेस है। So this is electron gain enthalpy। So in that sense, ये इसी के आधार पर इसका डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। The change in enthalpy accompanying complete addition of, ऊपर बोल रहे थे complete removal, यहाँ पे बोलेंगे complete addition of 1 mole of electron in 1 mole of gaseous atom
is called as electron gain enthalpy. So this is what we, यहाँ पर भी first electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy ऐसे हम लोग कर सकते हैं. So converts ये उस तरीके से आ सकता है. So that is what we are with this. So all these are the examples of enthalpy of ionization. So these are the types of enthalpy of ionization. Clear with this? So that is again we have seen enthalpy of ionization. Next we have to discuss that is enthalpy of atomization. Next we have to discuss enthalpy of atomization. Enthalpy of ionization delta ATMH. अब ये तो वर्ड हम नहीं भूलेंगे, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं. डेल्टा ATMH, ATM ऑल टाइम मनी तो हम अच्छी तरह जानते हैं. वैसे यहाँ पे ATM फॉर एटोमाइजेशन ऐसा करके लिखते हैं. तो एटोमाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ATM करके यूज किया जाता है. सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. अब देखिए कि हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो ट्वाइस H मिलेगा. ये फर्क है. दिस इज द हाइड्रोजन which is in molecular format and this is the hydrogen which is in atomic format. So here molecule is broken into atoms. Molecule is broken into atom. और इसका जो एंथैल्पी है डेल्टा ATMH, this you can say 436 kilojoule. 436 kilojoule. And this is what we have. 436 kilojoule energy इतना आता है उसके अंदर. अभी देखिए हाइड्रोजन जब तैयार होता है तो 436 किलो एनर्जी बाहर आता है. अभी हाइड्रोजन जब ब्रेक करते हैं वापस एटम्स में तो 436 किलोजूल एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. सो दिस इज, तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, जैसे मैंने बताया कि दिस इज द सब्सटेंस व्हिच इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज ब्रोकन इनटू एटॉमिक फॉर्म. तो मॉलिक्यूल एटम्स में कन्वर्ट हुआ है तो अपने आप तो कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज इतना अमाउंट ऑफ हीट इस मॉलिक्यूल के लिए हमें सप्लाई करना पड़ता है. सो दिस हैज टू बी सप्लाइड. सो इन दैट सेंस ये सिंपल डेफिनेशन बनता है. दिस इज द अमाउंट ऑफ, मतलब दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनी the complete breaking of one mole molecule into atoms. ये one mole molecule है और ये किसमें कन्वर्ट होता है, atoms में. So complete breaking of one mole molecule into atoms without change in temperature is called as enthalpy of atomization. This is called as enthalpy of atomization. So ये enthalpy of atomization. हम वैसे किसी भी molecule का हम लोग कर सकते हैं, क्लोरीन का कर सकते हैं, हम लोग मीथेन molecule का कर सकते हैं, many molecule का कर सकते हैं, solvents. Let's have the example of methane molecule को again. जैसे कि methane molecule है CH4. अभी मीथेन मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एलिमेंट दिखते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ये मॉलिक्यूल को एटम्स में ब्रेक डाउन करना है. तो ये डायरेक्टली एटम में ब्रेक डाउन नहीं होगा. पहले क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो दिस इज CH3 और एक हाइड्रोजन आएगा. ठीक है, तो पहला एटम मिल गया हम लोगों को. फिर दूसरा आ जाता है, यू कैन सी हियर CH3 का मिल जाएगा CH2 प्लस 1 हाइड्रोजन. फिर आएगा CH2 तो CH प्लस 1 हाइड्रोजन. फिर आएगा CH to C plus H. So this is what we can say. तो अभी सारे एटम के फॉर्मेट में आ गए. मतलब ये उसका माइक्रो प्रोसेस है. हम सीधा भी लिख सकते हैं 1600 समथिंग. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर दिस मीथेन मॉलिक्यूल. मीथेन मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना है तो 1650 किलोजूल, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज. उसके अंदर उतना रिलीज होता है. सो लेकिन अगर देखते हैं हम उसके अंदर तो उसके अंदर कई सारे एटम्स है और हर एक एटम का अलग अलग होता है. पहला एटम हटाने के लिए अलग है, दूसरा आइटम हटाने के लिए अलग है, तीसरा आइटम हटाने के लिए अलग है, फोर्थ आइटम हटाने के लिए अलग है. सबका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अलग अलग है. हाँ, हम जब लिखते हैं तो उसे एवरेज में प्रेजेंट करते हैं. दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द एवरेज वन, क्योंकि सारे आइटम ही तो है तो इसलिए एवरेज लिखा जा सकता है फाइनली. बट हर एक आइटम का डिफरेंट होता है. जैसे कि हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन का देखा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से फर्स्ट एटम सेकंड एटम थर्ड एटम सारे एटम लाइक दैट. तो सबके लिए अलग अलग होता है क्योंकि पहला आइटम हटाने के बाद कई सारे फोर्सेस बदल जाते हैं, फिर दूसरा हटाने फिर और फोर्सेस बदल जाते हैं, फिर तीसरा हटाने और फोर्सेस बदल जाते हैं. सो वेरी होता है. जरूरी नहीं कि सबका बढ़ता जाए, अचानक से कम भी आ सकता है. पहले 2 का 3 का बढ़ता जाता है, फिर फोर्थ में अचानक कम आता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे आइटम छोड़ देते, एक आइटम कार्बन का बैलेंस सेटिस्फाई तो होता नहीं. सो दैट एनर्जी डिक्रीजेस अगेन. सो यही तो है कि कौन सा आइटम ब्रेक कर रहा है, कौन से लेवल का आइटम है, उसके ऊपर उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है. सो दैट इज व्हाट वी कैन से. तो ये उसके अंदर आ जाता है. सो दिस इज यू कैन से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो ये एग्जांपल है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जिसके अंदर मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक किया जाता है और मॉलिक्यूल को अगर एटम में ब्रेक करना है तो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड. दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो इन दैट सेंस व्हाट वी कैन से हियर change in enthalpy accompanying the complete breaking of one mole molecule into atoms. One mole molecule into atoms is called as enthalpy of atomization. अगर इस रिएक्शन को मैं सम अप करना चाहता हूँ एक ही साथ तो CH4 gives you C plus 4 हाइड्रोजन एटम्स इस तरीके से.
एक ही साथ लिखना चाहता हूँ तो मीथेन मॉलिक्यूल को सीधा ब्रेक कर दिया एक कार्बन आइटम में और 4 हाइड्रोजन आइटम। बट ये प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो हर एटम के साथ अलग अलग एंथैल्पी रिलेटेड है और कुल मिला के फाइनल में आ जाता है, दैट इज द एवरेज। सो ये एवरेज कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, सबका ऐड करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, इसका एवरेज आपको मिल जाएगा। सो क्लियर विद दिस, सो दिस इज व्हाट वी कैन से, तो ये हम लोगों को उसके अंदर मिल जाता है, दिस इज व्हाट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल को एटम्स में ब्रेक करना है, वन मोल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू एटम्स, whatever the change in enthalpy in that process, that must be called as the enthalpy of atomization. Clear with this? The next, there is solution enthalpy. Okay, so let's go to next, solution enthalpy. So delta H solution enthalpy. Solution enthalpy. अभी solution enthalpy क्या है देखिए, उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि सपोज हमारे पास NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और वो हमारे पास जनरली सॉलिड फेज में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, NaCl एक्वियस फॉर्म में लिखा जाता है, NaCl एक्वियस मतलब वाटर। सो सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर पुट करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन है उसे NaCl एक्वियस कहा जाता है, ठीक है, और दिस इज NaCl सॉलिड फॉर्म में। सो मतलब यहाँ पे हम लोग को वाटर ऐड करना पड़ेगा, जैसे NaCl सॉलिड प्लस H2O, तो ये बनेगा NaCl एक्वियस। तो ये इस तरीके से भी रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, बट NaCl सॉलिड टू NaCl एक्वियस ऐसा लिखा जाता है। सो इसके अंदर हुआ क्या है अभी देखिए ना, कि हमने सोडियम क्लोराइड नाम का सब्सटेंस पानी के अंदर पुट किया है, उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, और फिर पानी के अंदर हमें Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस सब मिल जाएगा, दैट इज NaCl एक्वियस। वो फर्दर रिएक्शन, नाउ यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस था, जो हमारा ये सॉलिड फॉर्मेट NaCl था, दैट इज डिसॉल्व इनटू द वाटर, जो गिवन वाटर है हमारे पास उसके अंदर वो क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, एंड दैट इज वो सॉल्यूशन बनता है। तो ये सॉल्यूशन बनने के लिए जितना हीट चेंजेस होते हैं, जो भी चेंज इन एंथैल्पी होता है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर भी ये मैटर करेगा, स्टैंडर्ड जाते हैं 1 मोल, हम अभी तक के कई सारे डेफिनेशन में 1 मोल यूज करते हैं, तो इधर भी होगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा होता है, चेंज इन एंथैल्पी accompanying the complete dissolution of, change in enthalpy accompanying the complete dissolution of 1 mole of solid, 1 mole of solid to given amount of solvent, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी कितना होगा हम नहीं जानते, है ना, जैसे कि लैबोरेटरी में आपको सबको बोला जाता है कि ये NaCl ले लो और आप डिसॉल्व करो पानी के अंदर, और आपको बोला जाता है कि आपका जो भी कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर डिसॉल्व करो, तो हम भी अलग अलग तरीके से होते हैं, अभी हम लोग अलग तरीके से सोचने वाले लोग हैं, तो कोई बोलेगा मैं पूरा फ्लास्क भर के पानी लेता हूँ, उसके अंदर नमक डिसॉल्व करता हूँ, कोई बोलेगा मैं आधा ही लेता हूँ, कोई बोलेगा मैं बहुत कम लेता हूँ, लाइक दैट क्वांटिटी अलग अलग होगी ना, सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में भी डिफरेंट। सो ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि change in enthalpy accompanying complete dissolution of 1 mole of solid, that is solute, 1 mole of solute into given amount of solvent. Given amount of solvent is called as enthalpy of solution. Enthalpy of solution. और यहाँ पे NaCl के केस में this enthalpy of solution is plus 4.01 किलोजूल, plus 4.01 किलोजूल, मतलब सोडियम क्लोराइड का अगर 1 मोल हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, से 1 लीटर पानी के अंदर, तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है प्लस 4.01 किलोजूल, इतना उसका एंथैल्पी है। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा हम लोगों को, जिसके अंदर सोल्यूट पुट करना पड़ेगा, सोल्यूट की मात्रा होगी 1 मोल, और द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वुड बी गिवन, जो भी होगा 1 लीटर 2 लीटर जो भी है उसके अंदर होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी बदलेगा तो वो चेंजेस होने की चांसेस है जरूर उसके अंदर। सो इन दैट सेंस यू कैन से द चेंज इन एंथैल्पी accompanying the complete dissolution of 1 mole of solute into given amount of solvent is called as enthalpy of solution. This is called as enthalpy of solution. तो ये हमारा enthalpy of solution आ गया। लेकिन enthalpy of solution के अंदर काफी सारे सब टॉपिक आ जाते हैं। enthalpy of solution के अंदर काफी सारे सब टॉपिक आ जाते हैं। कौन से आते हैं आप देखिए कि अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl तो NaCl के पहले क्रिस्टल्स होंगे, NaCl के पहले क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल से हम लोग मॉलिक्यूल में चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल से फिर हम लोग एक्वियस फॉर्मेट में चले जाएंगे, दैट इज एक्वियस। ओके, तो आप देखिए ना कि जो NaCl है, NaCl के पहले क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे घर में भी सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड, तो हमारे घर में जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, वो क्रिस्टल के फॉर्मेट में होता है, क्रिस्टल्स होते हैं उसके, और यहाँ पे हमें उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मेट लेके जाना पड़ता है। तो पहले क्रिस्टल हैज टू बी ब्रोकन इनटू मॉलिक्यूल। तो अभी देखिए ना क्रिस्टल कैसा बनेगा, क्रिस्टल बनेगा NaCl, ये दूसरा NaCl, ये तीसरा NaCl, ऐसे कई सारे NaCl इकट्ठा के क्रिस्टल बनेगा, कई सारे NaCl इकट्ठा के क्रिस्टल बनेगा। तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है,
सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच, तो इन दैट सेंस व्हाट हैपेंस, ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर, तो उनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स हैज टू बी ब्रोकन एंड दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, उसे कहा जाता है लैटिस एंथैल्पी, LATTIC, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, हमने सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर डिस्कस किया था, जहां पे हमने देखा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। दुनिया में सारे सब्सटेंसेस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं, तो यहाँ पे NaCl के जो एटम्स होते हैं, NaCl के मॉलिक्यूल सॉरी, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे जो आके क्रिस्टल बनता है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनता है, और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टल, सो दिस इज क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो क्रिस्टल है, दिस क्रिस्टल हैज टू बी ब्रोकन इनटू मॉलिक्यूल्स एंड देन मॉलिक्यूल हैज टू डिसॉल्व। सो ये जो लैटिस है, दिस लैटिस इज रिलेटेड विद दिस फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। अभी हम देखिए घर में ऐसा कर सकते हैं कि हम घर में कभी कभी हम लोग सॉल्टी नट्स बनाते हैं, है ना, सॉल्टी नट्स बनाते हैं, सॉल्टी चने बनाते हैं हम लोग। तो प्रोसेस क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं कि पानी में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, ऑलमोस्ट सॉल्ट डिसॉल्व होता है, और वो पानी हम लोग गर्म बर्तन पे डाल देंगे तो पानी वेपराइज होकर वापस सॉल्ट हमारा क्रिस्टलाइज होता है। ये हम घर में भी करते हैं और लेबोरेटरी में भी हमने क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की है ना। तो हम लेबोरेटरी में जब जाते हैं तो लेबोरेटरी में हमने बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखे हुए हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में इवेपोरेटिंग हीट लेके आपने क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आपने, जिन्होंने नहीं किए वो शायद नहीं रिकॉल कर पाए होंगे, जिन्होंने किए वो जानते हैं कि इवेपोरेटिंग हीट के अंदर हम लोग सॉल्ट डिसॉल्व करके इवेपोरेट करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं और फिर वापस क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं, है ना। तो ये घर में कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट, पानी लेना है, पानी के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करना है, उसको हीट करो, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा और पानी निकाल दो उसका, वापस थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए रखो, क्रिस्टल्स वापस रीअपीयर होते हैं, तो क्रिस्टल्स वापस बनते हैं, मॉलिक्यूल डिसॉल्व होकर वापस इकट्ठा के क्रिस्टल बनते हैं। तो क्रिस्टल जब बनते हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड, और क्रिस्टल जब ब्रोक करना है तो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, है ना, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। तो क्रिस्टल को ब्रोक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, और क्रिस्टल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे जब डिसॉल्व करना है पानी में, किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है तो उसके क्रिस्टल ब्रेक डाउन करने पड़ते हैं, मतलब एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। तो सॉल्यूशन के अंदर लैटिस एंथैल्पी नाम का एंथैल्पी आता है जो क्रिस्टल फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो क्रिस्टल फॉर्म होते समय जो एनर्जी बाहर निकलेगा वो लैटिस एंथैल्पी है, और जो क्रिस्टल ब्रेक करते समय एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा वो भी लैटिस एंथैल्पी है, बस साइन गेट रिवर्स, दैट इज ब्रेक करते समय हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्म होते समय एनर्जी रिलीज होगा, साइन बस माइनस या प्लस होगा उसका, नथिंग मोर देन दिस, बट दैट एंथैल्पी व्हिच इज रिलेटेड विद द क्रिस्टल फॉर्मेशन, 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। सॉल्यूशन के अंदर एक फैक्टर आता है जो माइक्रो लेवल पे सॉल्यूशन के अंदर आता है, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी के बिना वो आगे नहीं जाएगा। दूसरा आता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दूसरा आता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ओके, मतलब व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, हां ये एक पार्ट आता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरा आता है ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया रिजल्ट क्या है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब क्या है, सपोज दिस इज द कंटेनर और ये कंटेनर में हमारे पास इसके अंदर हमने वाटर लिया, सो दिस इज द वाटर, इस वाटर के अंदर हमने NaCl डाल दिया, NaCl गिरा पुट दिया, तो NaCl का क्रिस्टल डाल दिया, तो NaCl का क्रिस्टल डालने के बाद इसके मॉलिक्यूल चले जाएंगे, NaCl यहाँ पे NaCl यहाँ पे NaCl ऐसे चले जाएंगे। तो माइक्रो लेवल पे अगर हम देखते हैं कि ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा बिगर दिखते हैं कि दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H2O, this is another water molecule H2O, this is another water molecule H2O, this is another water molecule H2O, सारे वाटर मॉलिक्यूल है, और ये वाटर मॉलिक्यूल और ये NaCl का पार्टिकल NaCl, दिस इज NaCl, है ना। अभी NaCl इसके अंदर जाना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जब तक NaCl के लिए स्पेस नहीं बनाते तब तक NaCl उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, सो दे शुड मेक अ रूम, particles of water should make a room for them and then only this NaCl can dissolve, तभी जाके NaCl उसके अंदर क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं, so this is called as water molecules which are solvent particles and this is solid particle। तो solid particle और solvent particle में particles में अंदर कौन से forces interact होते हैं, that is that also matters, this is called as solute solvent interaction। अगर इनके बीच में attractive forces है तभी वो solution stable हो सकता है, अगर इनके बीच में repulsive forces है तो NaCl या तो सेटल डाउन होगा या तो प्रेसिपिटेट डाउन के ऊपर निकल आएगा, बट वो वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहेगा, सो दैट हैपेंस हियर, सो दिस इज व्हाट वी कैन से, ये इसके अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड एज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देयर इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन प्रोसेस, पानी के अंदर हम कुछ भी डिसॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
So this process is known as enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration. Okay. मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी सॉल्यूट हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसके साथ भी एक एंथैल्पी जुड़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. सो ये दो एंथैल्पी मेजर होते हैं, एंथैल्पी ऑफ लैटिस जो क्रिस्टल के साथ जुड़ा हुआ है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में कौन से फोर्सेस इंटरैक्ट होते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों मिला के सॉल्यूशन एंथैल्पी होता है. तो फाइनली सिंपल सा हम ऐसा बोल सकते हैं फाइनली कि solution enthalpy must be lattice enthalpy plus hydration enthalpy. So the sum total of this lattice enthalpy and hydration enthalpy is nothing but the solution enthalpy. तो जिस तरीके से हम sublimation enthalpy कर देखे थे हमने, enthalpy of sublimation that is fusion plus vaporization, उसी तरीके से solution enthalpy is lattice enthalpy plus hydration enthalpy, दोनों से बना हुआ है. Clear with this? So this is what we get here. This is called as solution enthalpy. तो solution enthalpy का पहला definition क्या बताया मैंने यहाँ पे? That is change in enthalpy accompanied by the complete dissolution of 1 mole of solute into given amount of solvent is called as enthalpy of solution. और उसके अंदर दो major factor आते हैं. मतलब factor के अगर theoretical बात करते हैं तो there are many interactions. Solute-solute interaction, solute-solvent interaction, solvent-solvent interaction, ये आते हैं. Solute-solute interaction मतलब ये जैसे मैंने बताया कि lattice enthalpy. Solute के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने की प्रोसेस है लैटिस एंथैल्पी. फिर सॉल्वेंट के और सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. वो बहुत वीक होता है, इक्वल टू 2, इसलिए दो ही कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड द सम टोटल ऑफ बोथ इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. Clear with this? Hope so you all got with this enthalpy. This is also a very important enthalpy of solution. Clear? So that's all. तो once again रिवाइज करते हैं, हमने कौन से एंथैल्पी के फॉर्म अभी तक देखे, हमने एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट एंथैल्पी के फॉर्म. ठीक है. सबसे पहले देखा हमने एंथैल्पी का फॉर्मेट देखा, दैट इज एंथैल्पी इन द फिजिकल चेंजेस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. वी हैव one more type what we are saying, that is enthalpy of ionization, electron gain enthalpy, enthalpy of atomization, enthalpy of solution, जिसके अंदर देखा हमने enthalpy lattice enthalpy, उसके अंदर देखा hydration enthalpy. मतलब हर किसी इंटरेक्शन के साथ थोड़ा थोड़ा enthalpy जुड़ा हुआ है. ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा लास्ट का enthalpy देखते हैं, उसके अंदर enthalpy of dilution. So let's move enthalpy of dilution. Enthalpy of dilution. So delta dilution H, enthalpy of dilution. जैसे भी नाम आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे छोटा वर्ड लिखना है, that is enthalpy of dilution. Enthalpy of dilution मतलब क्या है? डाइल्यूट करना है. We have to dilute the solution. We have to dilute the solution. तो किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो that is enthalpy of dilution. Say for example हमारे घर के अंदर हम चाय बनाते हैं, और चाय बनाते बनाते कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मीठा चाय बन गया, तो मीठा चाय बनाने के बाद हम फेंक तो नहीं देते, दूसरा एक सोल्यूशन होता है उसे थोड़ा डाइल्यूट बनाते हैं, थोड़ा सा और वाटर या फिर मिल्क उसके अंदर ऐड करो, पेंट चाय बन जाए. उसी तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं. हमारे पास कई सारे केमिकल्स है, हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं. और उन्हें अगर डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए भी एक उसके अंदर एंथैल्पी रिलीज होता है, दैट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. से हमारे पास HCl, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज इसके अंदर H2O, मतलब ये वाटर के अंदर पुट किया, so this becomes, you can say, HCl aqueous, and this enthalpy of dilution is almost 75 kilojoule per mole. 75 kilojoule per mole ये होता है. So clear with this? So this is the hydrochloric acid, that is pure hydrochloric acid, which is diluted with water. So now this becomes aqueous HCl. See, pure HCl अलग बात है और aqueous HCl अलग बात है. So this pure HCl is diluted with water. So now this becomes diluted HCl. है ना, concentrated HCl, diluted HCl हम अच्छी तरह जानते हैं, है ना, डिफरेंस दोनों का जानते हैं. So in that sense this is diluted. So the change in enthalpy, मतलब change in enthalpy of dilution is 75 kilojoule for this HCl. अभी HCl का डाइल्यूशन कितना करते हैं हम उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. So डाइल्यूशन अगर हमने 1 मोल का किया है, डाइल्यूशन अगर हमने इनफिनाइट डाइल्यूशन किया तो कितना है, तो it is been also very carefully studied for the HCl molecule. HCl molecule का डाइल्यूशन अगर हम लोग 50 मोल तक करते हैं, 50 मोल तक, तो वो 72 के आसपास उसका एनर्जी होता है, 72 के आसपास किलोजूल के आसपास. लेकिन उसका अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इनफिनाइट मतलब कोई बोलेगा मैं बहुत ज्यादा पानी डालता हूँ उसके अंदर, 10 लीटर 5 लीटर पूरा एक टैंकर पुट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
आप इन्फिनिट कितने भी डायल्यूशन करो लेकिन उसका चेंज इन एंथैल्पी 75 के आगे नहीं जाएगा। हाँ, पहले 50 मोल तक वो 72 किलो जूल था, नॉट मोर देन दैट। बट उससे ज्यादा अगर इन्फिनिट डायल्यूशन करते हो तो 75 किलो जूल। उसके बाद आप कितना भी डायल्यूट करो उसका चेंज इन एंथैल्पी नहीं बढ़ेगा। चेंज होता है लेकिन बहुत ही निग्लिजिबल होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड इन दैट सेंस। सो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन के लिए थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स की लिमिटेशन जरूर होता है, बट दैट इज अप टू सर्टेन लिमिट। 50 मोल्स ऑफ वाटर with HCl diluted gives 72 kilojoule of enthalpy. And if it is diluted infinite, up to the infinite extent, then the enthalpy is 75 kilojoule. बस 3 या 4 का डिफरेंस होता है, किलोजूल का डिफरेंस होता है, not more than that. तो उसी तरीके से बाकी सारे सब्सटेंसेस के लिए, सो उसका डेफिनेशन इस तरीके से आता है, whenever solution of one concentrated is diluted to solution of another concentration, whatever the change in enthalpy in the process is called as enthalpy of dilution. Solution of one concentration is diluted to solution of another concentration, then that process, whatever the change in enthalpy occurs in that process, must be known as enthalpy of dilution. तो हम कई सारे substances dilute कर सकते हैं और उसे हम लोग कहते हैं enthalpy of dilution. Clear with this? So मुझे लगा होप सो कि आपको ये सारे enthalpy का फॉर्मेट समझ में आया। यहाँ पे enthalpy के कई सारे टाइप्स हमारे खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा एक बॉन्ड एंथैल्पी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर उसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस थर्मोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज दिस एंथैल्पी। तो जस्ट विल रिवाइज बीइंग, मैंने बताया आपको कि एंथैल्पी इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन बिकॉज़ इट इज ऑन द बॉर्डर वेयर वी आर एंटरिंग फ्रॉम द सिस्टम, द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो केमिस्ट्री के अंदर एंटर करने का एंथैल्पी हमारा बॉर्डर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी मस्त कॉन्सेप्ट, इजी भी है। So what we are saying, what is enthalpy? Enthalpy is a total energy content of the system, including its internal energy and pressure volume of energy is called as enthalpy. Enthalpy is given by different formulas what we have calculated, and enthalpy has different types depending upon the different changes, physical or atomic molecular level. So first enthalpy of physical changes इसके अंदर आता है enthalpy of fusion, enthalpy of freezing, enthalpy of vaporization, and enthalpy of condensation. Enthalpy of sublimation. Then we have enthalpy of ionization, enthalpy of electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, enthalpy of atomization, change in enthalpy of solution, lattice enthalpy, hydration enthalpy, and this is enthalpy of dilution. और उसके साथ एक bond enthalpy होता है, reaction enthalpy होता है, and that is studied under thermochemistry. Here onwards we are going to enter into the chemistry proper part, और वो chemical reaction को लागू करेंगे, so वो हमारा शुरू हो जाएगा. So that topic we'll discuss tomorrow. So hope so you got this. If you have the doubt, we'll have the doubt session tomorrow. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow.